रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं आप सबका इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने अटारी जॉइंट चेक पोस्ट पे ऑर्गेनाइज की है उसमें स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ऑन द ईव ऑफ डायमंड जुबली 61st रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ, दैट इज 1 दिसंबर 2025 के अवसर पर की जा रही है। जैसे कि आप सबको ध्यात है कि हम हर साल एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब फ्रंटियर बीएसएफ द्वारा जो अचीवमेंट्स की है उसका साझा हम आपके सामने रखते हैं। Punjab Frontier of BSF is also celebrating its Diamond Jubilee, 60 years of dedicated service to the nation. Punjab Frontier भी 1 दिसंबर 1965 को एक सेक्टर जो जलंधर में स्थित था उसके साथ स्थापित हुआ था। On 2 October 1966, 10 battalions of Punjab Armed Police (PAP) were inducted into BSF and deployed on Indo-Pakistan international border. Since then, Punjab Frontier remained vital in safeguarding nation's boundaries and upholding the peace with courage, discipline and sacrifice. BSF, the first line of defense, is the largest and one among the most efficient border guarding force in the world. BSF is deployed to guard 6,387 kilometers of international border and 772 kilometers of LOC, line of control, out of which BSF Punjab Frontier alone is responsible for guarding 553 kilometers of IB along Pakistan border. All these years since its establishment, BSF troops have faced innumerable challenges of border management at the difficult and arduous borders and have dealt them with great enthusiasm, professionalism and determination. आप सबको पता है कि इस साल मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर द्वारा आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलके we have demonstrated exemplary courage, operational excellence along the Pakistan border while being resolutely deployed on the forward posts. BSF troops successfully covered multiple offensive attempts of enemy involving suicidal drone attacks, missiles and rocket strikes and heavy firing on the border posts. BSF's swift response जो साडी joint इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ Indian Army ਲੈ ਕੇ forces ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ the enemy ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ to ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ retreat ਆਪਣੀ from their ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ border ਵਿੱਚ posts ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ and ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮਿਸਟਰ take ਸਰਬਜੀਤ cover ਰਾਏ in their bunkers. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BSF ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਸ Mahila ਗਠਿਤ Prairies ਕੀਤੀਆਂ also displayed a remarkable ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ bravery ਸਾਡੇ by ਅੱਗੇ holding the ਡੀਐਸਪੀ front line positions and delivering effective retaliatory ਡੀਐਸਪੀ fire. ਸਾਡੇ The professionalism ਮਿਸਟਰ ਓਮਕਾਰ and ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ gallant action ਸਾਡੇ shown by ਇੰਸਪੈਕਟਰ BSF ਲੋਹੀਆਂ personnel on entire ਗੁਰਸ਼ਰਨ western ਸਿੰਘ, border, ਸਬ including ਇੰਸਪੈਕਟਰ Punjab ਤੇ ਸਾਡੇ border, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ during Operation Sindoor were highly appreciated by Honorable Prime Minister, ਮੇਨ Honorable Union ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ Home Minister ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਪਾਲ and DGMO. ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਭ को पता है ਟੀਮ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ इसी साल ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ बहुत ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। डिवास्टेटिंग बाढ़ आया था, ਇਹਨਾਂ फ्लड आए ਸਾਰਿਆਂ थे ਵੱਲੋਂ इन पंजाब, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ट्रेस ਕਰਨ ਦੇ पर्टिकुलरली ਵਿੱਚ जो रावी दिन रिवर रात है और सतलज एक रिवर करके सिस्टम मेहनत पूरी की। तरह से फ्लडेड थी और बहुत ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ flood था। ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ उस फ्लड के दौरान ਕਿ ਇਹ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपने मोटर बोट्स, हेलीकॉप्टर्स ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ यूज ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ करके ਉਹਦੇ करीब ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ 2500 सिविलियंस
जो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ flood ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ affected ਖੰਗਾਲ थे ਰਹੇ ਸੀ। उनको सेफर लोकेशन में पहुंचाने में ਇਹਦੇ बहुत ਵਿੱਚ बड़ा ਸਾਡੇ ਨਾਲ योगदान ਜਿਹੜਾ दिया। ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ जो ਕਾਫੀ डिस्ट्रिक्ट ਸਹਿਯੋਗ एडमिनिस्ट्रेशन ਕੀਤਾ के साथ मिलके हमने ਗਿਆ। ये इसको ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ अंजाम ਵੱਲੋਂ ਵੀ दिया ਇਹਦੇ था। ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ इसके ਸਾਰੇ अलावा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋग ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जब फ्लड आया था तो हमें ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ये ਵੱਖ-ਵੱਖ जनरली ਫੁਟੇਜ महसूस होता CCTV है ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ कि फ्लड के ਦੇਖਿਆ, ਉਸ बाद ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ महामारी या एपिडेमिक शुरू हो जाता है। ਇਹ ਉਸ तो वो ना हो पर्टिकुलर इसलिए ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF द्वारा ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਰਾਤ फ्री 23 ਤੇ मेडिकल 24 ਦੀ कैंप्स ਰਾਤ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें करीब 14,000 लोगों को बॉर्डर विलेजेस को ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ जो है हमने ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ये दवाई पहुंचाई, ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ चिकित्सा की, ਇੱਕ उनकी ਜ਼ੀਰੋ जांच ਡਾਊਨ की और ਏਰੀਆ जो लोग ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऐसे थे ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਤਾਂ उनको ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ दवाई ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ हमने ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। प्रोवाइड ਜਿਹੜੇ करवाई। ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ अलावा- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜਨ इसके अलावा सन ऑफ मार्क हमारा जो वेटरनरी विंग है बीएसएफ का, ਨਾਂ ਦਾ उनके ਵਿਅਕਤੀ द्वारा ਹੈਗਾ, एनिमल ਇਹਦਾ ਸਨ ਆਫ ਲੇਟ वेटरनरी ਸ਼ੌਕਤ कैंप्स लगाए गए थे पूरे बॉर्डर में, और उस वेटरनरी कैंप द्वारा करीब 7,000 से ज्यादा जो पशुओं को है, जो पशु इसमें फ्लड में अफेक्टेड थे, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, उनकी चिकित्सा की है, उनको ट्रीटमेंट दिया है। ये सारा जो काम है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से किया गया, और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब के लोगों ने काफ़ी सराहा गया। आप सबको पता है कि बीएसएफ जो है वो बीएसएफ में जो डॉग्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो डॉग्स आर सपोज टू बी द फोर्स मल्टीप्लायर इन बीएसएफ। हमने पिछले साल एक सब्सिडियरी डॉग ट्रेनिंग स्कूल जो फिरोजपुर में है वो शुरू किया था। उसमें हमने जो जम्मू फ्रंटियर, बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर, पंजाब फ्रंटियर और राजस्थान फ्रंटियर में जो जितने डॉग की ज़रूरत है उनके डॉग्स को हम ट्रेन करते हैं। इसी के कड़ी में एक बहुत सराहनीय काम हुआ है ये पंजाब फ्रंटियर द्वारा, कि बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर का एक इंडिजिनियस रामपुर हॉर्न, जो इंडिजिनियस हमारी ब्रीड है रामपुर हॉर्न, उसका नाम है बबीता, उसको नेशनल केनाइन ब्रेवरी अवार्ड मिला है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा दिया गया है। ये ब्रेवरी अवार्ड जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए हमारे डॉग को मिला है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है हमारी पंजाब फ्रंटियर की। पंजाब पूरे बीएसएफ में टोटल 193 बटालियंस है, उसमें से इस वक्त बेस्ट बटालियन जो चुनी गई है वो पंजाब फ्रंटियर से है। 27 बटालियन जो कि डेरा बाबा नानक में स्थित है गुरदासपुर सेक्टर में, उसको बेस्ट बटालियन का सम्मान मिला है, जिसको हम बीएसएफ में जनरल चौधरी ट्रॉफी बोलते हैं। और ये जनरल चौधरी ट्रॉफी हाल ही में हुए रेजिंग डे फंक्शन जो भूज में हुआ था, उस फंक्शन में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा हमारे कमांडेंट को, 27 बटालियन के कमांडेंट को ये ट्रॉफी बहाल की गई है, जो बेस्ट बटालियन पूरे बीएसएफ में सिद्ध हुई है, जो हमारे पंजाब फ्रंटियर के प्रोफेशनलिज्म का प्रमाण है। हम अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो हम आप सबको पता है कि पंजाब में पूरी जो है ड्रोन्स का मीनेस बहुत ज़्यादा है। ड्रोन्स द्वारा आए जो हेरोइन, जिसको नशा, और ड्रोन्स द्वारा आए वेपन्स एक हमारे लिए हमेशा चुनौती बनी रही है। तो हमने इस वक्त जो है इस पूरे साल में हमने 3 prong जो अप्रोच जिसको बोलते हैं वो यूज़ किया है टू कंटेन दिस ड्रोन मीनेस, और टू कंटेन दी स्मगलिंग ऑफ हेरोइन एंड वेपन्स। तो ये 3 prong स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो पहला है कि ड्रोन क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसकी जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो सिनर्जी बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ग्राउंड फोर्सेस, केवल टेक्नोलॉजी लगा के कुछ फायदा नहीं, उसका ग्राउंड फोर्सेस को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन गिरा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हेरोइन और जो वेपन्स है वो रिकवर कर पाए। तो हमारी सिनर्जी बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ग्राउंड फोर्सेस
बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो सर्विलेंस कैमराज, जो हमने बॉर्डर पे सर्विलेंस कैमराज लगाए हैं, जो लोग जो स्मगलर्स ग्राउंड पे दिखते हैं, कैमरा में कैद होते हैं, कैमरा में जिनके फोटोज आते हैं उनको तुरंत रूप से हम पकड़ते हैं। तो ये सिनर्जी है, इसलिए उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके वजह से हमने इस साल अगर हम देखें जनवरी से लेके अभी तक हमने 272 पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराए हैं। 272 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। 370 किलो 370 केजी ऑफ हीरोइन हमने बरामद किया है। करीब 20 केजी आइस ड्रग, ये आइस ड्रग एक नया ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है, जो अभी हाल ही में ज़्यादा इसका हमने पकड़ा है। तो 20 केजी हमने आइस ड्रग पकड़ा है। इसके अलावा हमने वेपन्स का भी बहुत कंसाइनमेंट पकड़ा है, जो पर्टिकुलरली ड्रोन ड्रॉपिंग से हुए हैं। पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि ये वेपन्स ड्रॉपिंग का जो है वो ट्रेंड बढ़ गया है, और उसमें जो है करीब 200 से ऊपर विविध टाइप के आर्म्स हमने जब्त किए, सीज किए हैं, रिकवर किए हैं, जिसमें ज़्यादातर पिस्टल्स है, उसमें कुछ AK-47 भी है और कुछ बरेटा टाइप वेपन्स भी है। तो उसके बाद केवल आर्म्स ही नहीं पर 265 मैगजीन्स, 3600 एम्यूनेशन, लाइव एम्यूनेशन, और 10 किलो और 250 ग्राम का RDX एक्सप्लोजिव और 12 हैंड ग्रेनेड हमने इस साल रिकवर किया है। तो ये जो हमारा जो पहला स्ट्रेटेजी है कि सिनर्जी बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ग्राउंड फोर्सेस, उसमें हमने ये सारा जो है उसका सक्सेस है। दूसरा हमारा स्ट्रेटेजी है कि सर्विलेंस ओवर स्मगलर्स। जो बॉर्डर पे स्मगलर्स है उन पे हम कैसे सर्विलेंस करें। सर्विलेंस जो है हमारे पास जो इंटेलिजेंस टीम होती है, जिसको G टीम बोलते हैं, उनके द्वारा हमने सारे जो बॉर्डर पे जो उठाने आते हैं लड़के, जो ड्रोन ड्रॉपिंग से, जो ड्रोन के द्वारा हीरोइन आती है, वेपन्स आते हैं, उनका हमने डोजियर तैयार किया है। और हम जो जितने भी हमारे साथी जो सिस्टर एजेंसीज है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, एंटी नारकोटिक टास्क पंजाब पुलिस की है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और बाकी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके द्वारा ऑपरेशन करके हम ये जो जितने भी 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्मगलर्स है उनको मैप करते हैं, उनका सर्विलेंस करते हैं और उनको पकड़ते हैं। तो हमने इस साल हमने करीब 251 बॉर्डर पे स्मगलर्स को पकड़ के पुलिस के हवाला किया है। ये सिर्फ BSF ने पकड़ी हुई फिगर है। इसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो टीम जब उनको क्लू देती है, जो पंजाब पुलिस को, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को, या नेशनल कंट्रोल ब्यूरो को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, तो वो उनके इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो अन्य अरेस्ट होती है वो अलग। तो हमने उसमें काफ़ी मात्रा में इस साल जो है 251 लोगों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 189 लोगों को जो एक्टिव है बॉर्डर पे, उनका एक डोजियर बनाया है और वो पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस को दिया है, ताकि अभी जो फॉग आए उसमें जो है ये एक्टिव ना हो और उसमें सर्विलेंस माउंट रहे। हमने रिक्वेस्ट भी की है कि जो PIT NDPS एक्ट द्वारा जो है एक प्रावधान है, उनमें इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए, ताकि ये लोग अंदर रहेंगे तो जो है ये स्मगलिंग नहीं करेंगे। तो इसमें पंजाब पुलिस भी हमारी मदद करती है, और जब भी हम उनको ऐसे डोजियर देते हैं तो वो भी प्रिवेंटिव एक्शन में जो भी अवेलेबल है, CRPC या BNS में जो अवेलेबल है, उसमें उनको अरेस्ट करते हैं। और तीसरा जो है हमारा
तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वो कम्युनिटी आउटरीच, जो हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन है उसके बीच में हम जाते हैं। आपने देखा होगा, आप सब लोग बॉर्डर पे जाते हैं, बीएसएफ जाती है तो वहाँ स्कूल्स में जाते हैं, जो विलेज डिफेंस कमिटीज है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, गांव के जो लोग हैं, जो यूथ है पर्टिकुलरली, उनको स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं। तो हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले इसी साल फरवरी 2025 में हमने बॉर्डरमैन मैराथन ऑर्गेनाइज की थी। उसमें पूरे भारत भर से करीब 5,000 से ज़्यादा लोग दौड़े थे और उसमें 2,000 करीब जो है वो हमारे बॉर्डर विलेजेस के बच्चे दौड़े थे, जो जिसको एक अच्छा हम लाइफस्टाइल देना चाहते हैं और एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहे। इसके अलावा जो है हम लोग इंस्टीट्यूशनल आउटरीच भी करते हैं। इसी साल हमने करीब 100 से ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IIM अमृतसर है, या जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, JNDU है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, उन पे गए। उनको हमने बच्चों को टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यूनिफॉर्म, ताकि वो फौज के तरफ अट्रैक्ट हो और अपना जो करियर बनाने की सोचे फौज में और बाकी इविल इन्फ्लुएंस से दूर रहे। इसलिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके वो BSF का रोल समझाते हैं, क्या है उसमें BSF और अन्य CAPF और अन्य इंडियन डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए कैसी एंट्री है, उसका एग्जामिनेशन कैसा होता है, इसके रिक्रूटमेंट के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा वेपन एग्जीबिशन करते हैं, ताकि जो है वो लोग जो है यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इसके अलावा जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम भी करते हैं, ताकि कुछ विलेजेस, वाइब्रेंट विलेज स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत कुछ विलेजेस को हमने आइडेंटिफाई किया है, उससे स्कूल को अडॉप्ट करते हैं, उसके पंचायत को अडॉप्ट करते हैं, ताकि वो जो स्कूल में जो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए बच्चों को, कुछ इंटरेक्टिव बोर्ड चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई का सामग्री चाहिए, स्पोर्ट्स के आइटम चाहिए, वो हम उनको मुहैया करवाते हैं, ताकि एक हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ बॉन्डिंग रहे और ये जो गलत प्रभाव पड़ रहा है नशे का, उससे दूर रहे। इसके अलावा पंजाब फ्रंटियर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाया गया है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो घुसपैठियों द्वारा जो है यहाँ घुसपैठी भेज के, ट्रेन टेररिस्ट भेज के आतंकवादी टाइप एक गतिविधि फैलाना चाहता है। और इसके लिए हमने जो है एक अच्छा सर्विलेंस ग्रिड भी बनाया है और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी बनाया है, ताकि जो है हम किसी भी मतलब जीरो टॉलरेंस है, कोई जो है वो उधर से पाकिस्तान साइड से घुस नहीं सकता है। और इसी के तहत हमने इस साल जो है 3 पाकिस्तानी इंट्रूडर को मार गिराया है और करीब 18 पाकिस्तानी नेशनल को जो यहाँ आ गए थे उनको पकड़ा है। ये हमारे जो हमारे ट्रूप्स ग्राउंड पे है वो ये कार्रवाई करते हैं और 24/7 जो हमारे प्रहरी जो पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ ना आए। ये इसके अलावा जो है हम लोग आप सबको पता है कि हम लोग जो है मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं पूरे फोर्सेस में। और BSF एक ऐसा फोर्स है जो पूरे कंजम्पशन में 30% मिलेट है, चाहे वो जिसको अन्नश्री बोलते हैं, स्मॉल छोटा अनाज, वो लेते हैं और उसका जो है हम प्रसार भी करते हैं। लोकल मिलेट्स जो बेचते हैं उनसे हम लोकल मिलेट्स खरीदते हैं, ताकि ये जो इसका प्रमोशन हो। और दिवाली मेले के साथ साथ जो है हर जगह जो है हमारे मिलेट मेला लगते हैं, ताकि जो लोकल वेंडर्स या लोकल जो लोग हैं मिलेट्स बेचते हैं उनका हम प्रमोशन कर पाए। तो ये बेसिकली यही मेरा
ये जो जो अचीवमेंट्स है इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये मुझे आप सबको कन्वे करने थे। मैं आपके माध्यम से मैं प्रेस माध्यम नाल यह अपील करना चाहूँगा कि पंजाब दे नौजवान नशे दी तस्करी, नशे दे सेवन से दूर रहे, बचे। मैनू उम्मीद है कि मीडिया दी कलम दी ताकत नाल पंजाब दी जवानी नू देश निर्माण ते समाज नू यही सेध देन विच कामयाब होवांगे। आओ आपा सब मिलके एक प्रयास कराए ते पंजाब नू नशिया तो मुक्त कराइए। जय हिंद। सर, अमृतसर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन गांव है, इनमें मोदे आ गया, धनोआ आ गया, धनोआ कला आ गया, नेष्टा आ गया, मोरा हो गया, अटारी हो गया, नौशहरा डल्ला, कक्कड़ हो गया, कक्कड़ रानिया हो गया, और सबसे बड़ा गांव हवेलियां। जितने भी आपकी प्रेस नोट आती है वो इन्हीं गांव पे जो ड्रग्स पकड़ी जाती है, जो ड्रोन है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मतलब रुक रहा है काम? देखिए, ऐसा है कि ये जो जितने भी जो आपने गांव के नाम निकाले हैं, ये हमारे सेंसिटिव विलेजेस है और ये हमारे हॉटस्पॉट्स है जहाँ ड्रोन आते हैं और जो ड्रोन की ड्रॉपिंग होती है। हम पूरा हमारे जो जितने भी सर्विलेंस सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये पूरे इसी इलाके में रहते हैं। और आपने अगर उसको ठीक से देखा होगा तो हमने जो 251 जो लोग पकड़े हैं उसमें से करीब 50% इसी विलेजेस के हैं। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जो जैसे जैसे ये हम इसमें प्रगति करेंगे, हम इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कम होते जाएंगे। आपको ये बता दें कि ये जो है ये कैट एंड माउस गेम है। जहाँ जहाँ हम सख्ती करते हैं वहाँ वहाँ वो दूसरी तरफ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि पहले ये राजाताल, रतन खुर्द और अटारी के उस पार वाले गांव ज़्यादा इसमें ड्रॉपिंग जोन में थे, वहाँ हमने सख्ती कर दी, वहाँ पूरा कंट्रोल कर दिया। तो ये थोड़ा साउथवर्ड चले गए, नौशेरा डल्ला, हवेलिया, उधर बाबा पीर, इस साइड में। तो ये जो है ये कैट एंड माउस गेम है। हम अब पूरा धीरे धीरे जो है सब हर जगह पे उसमें कंट्रोल करते आएंगे। और हमारे साथ जो है वो हम टैंडम में काम करते हैं, वो चाहे एंटी नार्कोटिक्स टास्क पुलिस की हो या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हो। सर, अभी लास्ट वीक एक इंस्पेक्टर को 25 लाख रुपए अभी वो पकड़ा नहीं गया। वो छाटा का SHO है, मिस्टर लोगों का पता नहीं। तो ऐसे लोग भी काली बेड़े हैं जो मतलब BSF को या अपने जो मंसूबे उनको विफल कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे जो BSF में एक इंटरनल विजिलेंस बहुत तगड़ा है। और BSF का कोई भी जवान या BSF का कोई भी ऑफिसर इस टाइप के इसमें सम्मिलित है तो हम उसको तुरंत एक्शन लेते हैं। तो हमारा इंटरनल विजिलेंस बहुत स्ट्रांग है। सर, इतना बार बार ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, काफी कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रहे, बढ़ता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले जब से ये पंजाब फ्रंटियर में पहला ड्रोन जो है फरवरी 2019 में दिखा था, और जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से रिपोर्टेड ड्रोन है, और तब से लेके अभी तक हमने करीब 650 से ऊपर ड्रोन सीज किए हैं। और ड्रोन ड्रॉपिंग द्वारा करीब 3000 के ऊपर जो है 3000 किलो के ऊपर हेरोइन आई है। तो ये जो है ये इतना सारा जो कंटिन्यूअस हर साल ये जो इतना सारा जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आ रहे हैं और जो वेपन्स आ रहे हैं और जो हेरोइन आ रही है, ये केवल एक स्मगलिंग नहीं है, ये एक सोची साजी चाल है इंडिया के खिलाफ, स्टेट एक्टर की, जो पाकिस्तान चाहता है कि ये जो है
जो उनके नॉन स्टेट एक्टर से थ्रू करे और पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो ये जो है ये एक काइंड ऑफ असिमेट्रिक वॉर है। एक कन्वेंशनल वॉर होता है जो हम उनसे हमेशा जीतते हैं, वो हमें कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी जीतेंगे भी नहीं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो करते हैं। तो ये जो है ये एक इनकन्वेंशनल वॉर है, ये असिमेट्रिक वॉर है। और ये केवल हम इसको स्मॉल स्मगलिंग या छोटा स्मगलिंग करके ना देखें। ये एक साजिश सोची गई एक राजनीति है, एक षड्यंत्र है, नेफेरियस डिज़ाइन है जो हमारे पंजाब प्रांत की खुशी नहीं देखी जाती है और उसमें अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो सर इसमें जो हम ड्रोन फॉरेंसिक लैब में टेस्ट होने जाते हैं, ऐसी चीज मिली है अब तक मतलब इसमें? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बीएसएफ में 2 ड्रोन फॉरेंसिक लैब है, एक दिल्ली में है, एक हमारे पास अमृतसर में है। तो जो भी ड्रोन पकड़े जाते हैं, चाहे वो पुलिस पकड़े, बीएसएफ पकड़े, जम्मू की बीएसएफ पकड़े, राजस्थान की बीएसएफ पकड़े, हम उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। और फॉरेंसिक एनालिसिस में जो एविडेंस आते हैं वो जनरली एविडेंस यही होते हैं कि सर पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं और पाकिस्तान ने कहाँ से उड़ाए हैं, कैसे उड़ाए हैं, ये सारी एविडेंस आते हैं हमारे पास। और हम उसको टाइम टू टाइम जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसको उस पर हम साझा करते हैं। सर ड्रोन में कैमरा होता है, लाइव करते हैं लोग, चलता है, इससे हमारी सिक्योरिटी को कितना खतरा है? ये जो ड्रोन्स जो हम पकड़ते हैं ये जनरली माइक्रो ड्रोन्स है, छोटे ड्रोन्स है। इसमें जो DJI सीरीज के ड्रोन्स है, इसमें कैमरा इतना पावरफुल नहीं है जितना मिलिट्री ग्रेड ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन्स के लिए यूज होता है। तो ये जो ड्रोन्स में जो कैमरा लगा हुआ है ये इतना पावरफुल कैमरा है नहीं जो ताकि सर्विलेंस के लिए यूज कर पाए। नहीं सर, गिनी लेकिन में हल्के से तो ले लिया जा सकता है, अगले की मसला तो सही नहीं है। जी, अभी तो सर सारा सिस्टम ही सैटेलाइट के थ्रू है, गूगल मैपिंग में सब मिल जाता है। लास्ट ईयर 300+ था, मुझे लगता है इस बार उससे भी ज्यादा होगा। जी सर फॉग भी आ रही फॉग आ है, जी। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? देखिए ऐसा है कि फॉग जो आ रही है उसमें एक तो हमारी हमने एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इन्हांस करेंगे। दूसरा हमने बोला है कि हमने जो नोन स्मगलर्स है और जो जेल से बाहर है उसकी लिस्ट बनाई है, 189 की लिस्ट बनाई है जो पंजाब पुलिस को दी है ताकि उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन हो। और इसके अलावा हमने अपना जो डोमिनेशन जो है वो उसको भी ट्रेनिंग के थ्रू और बाकी लाइसेंस के थ्रू हमने डेप्थ में बढ़ाई है ताकि कोई बंदा जो है फॉग में वो बॉर्डर तक पहुंचे ही ना, हम उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर ले। तो ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी है ताकि हम फॉग में जो स्मगलिंग होती है उसको रोक पाए। तो पुलिस से सहयोग मिल रहा है? हाँ, पुलिस से पूरा सहयोग मिल रहा है जी। ANTF के साथ ANTF के साथ बहुत बढ़िया है। ANTF पंजाब भी अच्छा काम कर रहा है। हम रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, वो भी शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। सर हमारी एक पार्किंग है सरकारी, उसमें काफी गाड़ी आती है, लेकिन चलो ये सब तो वहाँ इसमें नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं, कितनी गाड़ी आती है उसमें कोई चेकिंग नहीं है कि कोई अगर कोई गाड़ी में दे जाए या रख जाए तो खतरनाक हो सकता है। कहाँ इसके पे? बारे में 20 रुपये करें कौन सी वाली? सरकारी वाली जो, शाही किला? हाँ वहाँ पे कोई चेक चेकिंग होती है ना? चेक तो होती है गाड़ी। सारी जी हाँ। चेकिंग होती है। नहीं ये देखो जो शाही किला है, शाही किला में जो प्राइवेट पार्किंग है ये बात सही है, लेकिन जो देखने के लिए जो लोग आते हैं और जो पार्क करते हैं तो वहाँ हमारा चेक पोस्ट है जो जब अंदर जाती है ना गाड़ी तो हम उसको चेक करते हैं।